Hey guys, what's up? Today is 1st of April and your examination is around the corner. सिर्फ 50 दिन बाकी हैं आपके prelims examination के लिए. So make sure that whatever you have read as of now, you revise that. See the mock test that you have given, revise it, and also at the same time see what are the previous year question paper. कई बार हम क्या होता है mock करते करते इतना like हम उस zone में आ जाते हैं that we tend to make errors in a very easy questions. ठीक है, तो आज हम start करने वाले हैं economics previous year question paper. And this year is 2021. Okay, the year that we are going to see is 2021. Chalo theek hai, let's get started. The very first question for your economics previous year question paper, we have chosen the year 2021 and UPSC has asked about RBI. Generally we read this topic in the chapter of monetary policy. So what are the question that is asking us? The governor of the Reserve Bank of India is appointed by the central government. That is a correct statement. Certain provisions of the Constitution of India give the central government the right to issue directions to the RBI in public interest. Now see, the caveat here is Constitution of India ऐसा कुछ नहीं कहती, ठीक है? RBI is a statutory body, so this is a wrong statement. अब देखो, पहला स्टेटमेंट आपको पता हो ना हो, दूसरा स्टेटमेंट अगर पता है तो सेकंड स्टेटमेंट जाते ही your option A, B and D gets eliminated. Answer becomes your C. ठीक है? And let's see the third statement. कई बार आप देखते हो अगर पहला स्टेटमेंट आपको लगा सही है गलत है, on that basis you do not take a call. Whenever in the examination also make sure that you read all the sub parts of a question. That's a key. Statement C is the governor of the RBI draws his power from the RBI Act. Absolutely true. So option C is the right answer. ठीक है? और एक बात, जब आप सॉल्व कर रहे हो एट द सेम टाइम आप जब लेट्स से यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, तो आप जब भी क्वेश्चन में दिखाऊं, यू पॉज दैट वीडियो, you try to solve it yourself. कुछ logic लगाओ, read the statements and try to solve the question. The moment you try to solve a question, your brain will starts working. When the brain starts working, अगर आपने उसको गलत किया है, your ego will get hurt. Ego as in not terms of the ego that we talk about. एक सेल्फ ईगो भी होता है, यार मेरे से गलत कैसे हो गया, ठीक है? दैट काइंड ऑफ ईगो आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो अगर आपने गलती की है तो आपको लगेगा अच्छा यार इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देन यू गो अबाउट द सॉल्यूशन, ठीक है? तो हियर आई एम गिविंग अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा एंड देन इफ रिक्वायर्ड यू कैन रीड दीज पॉइंटर्स आल्सो, ठीक है? So statement 2 is incorrect. जो हमने बोला it is a statutory power granted under section 7 of the RBI Act, ठीक है? Statement 1 and 3 are correct and that's why the answer is C. Question number 2. Again, now you have to pause the video, try to watch the question, try to apply it and then eventually come to an answer and then see what is the kind of explanation on that. So with reference to casual workers employed in India, अब देखो यहाँ पे casual workers के बारे में पूछा हुआ है. We already know in the month of December, basically from 25th of 31st of December or let's say 1st of January, there was a lot of protest going by Swiggy, Zomato, that delivery guys, ठीक है? तो इन्होंने क्यों प्रोटेस्ट किया था एंड व्हाट इज द कैटेगरी दैट दे कम इन द गिग इकोनॉमी कैटेगरी, ठीक है? अब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में. सो मेक श्योर दैट यू नो मोर अबाउट द प्रोविजंस, द लीगल प्रोविजंस दैट दे हैव, ठीक है? और उसी से रिलेटेड है कैजुअल वर्कर्स. ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज. सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑल एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है? And the second statement also says all casual workers are entitled for regular working hours and overtime payment. This is the right statement. कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक में या इन्वायरमेंट में कई बार क्वेश्चन आता है ऑल ऑफ द अबव, या लेट्स से पॉलिटी में भी कई बार आ जाता है ऑल ऑफ दीज. सो व्हेनेवर यू सी ऑल, not necessarily always wrong but most of the time it is wrong because all is an absolute statement. Only, ठीक है? Only this does this, ठीक है? तो जब ओनली भी आए या ऑल आए, ये क्या हो गया, दोनों एक स्पेक्ट्रम के एब्सोल्यूट हो गए. लेट्स से ओनली इज वन, मतलब सिर्फ एक ही है, ऑल मतलब सारे, तो ये बहुत एब्सोल्यूट हो गए, राइट? एक स्पेक्ट्रम के जो बैंडविड्थ होती है वो दोनों ऑपोजिट एंड्स पे हैं, तो कई बार ये क्वेश्चंस राइट नहीं होते और रॉन्ग ज्यादा होने की चांसेस होता है. तो मेक श्योर दैट यू give some point about it. So one is wrong. So the moment you know one is wrong, 2 and 3 is right. Again, you do not have to come to a conclusion. You have to read the third statement. The government can by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. ठीक है? अब देखो इसमें only है, ये caveat है, but this statement in general is very simplistic. ठीक है? It says the government can by notification specify that an establishment or industry shall pay wages only through its bank account. That's a right statement. So answer is B. ठीक है? Answer is B. Moving on to the next question number 3.
Which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? ठीक है, we learn about the recession topic in economics. ठीक है, अब हम जब रिसेशन पढ़ते हैं तो व्हाट इज रिसेशन, व्हाट इज डबल रिसेशन, ठीक है, देयर इज अ कॉल्ड थिंग कॉल्ड डबल रिसेशन, देयर इज अ थिंग कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। तो इन टर्म्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, ठीक है। तो जब रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट जनरली करती क्या है? कट इन द टैक्स रेट accompanied by increasing interest rate. What is interest rate? Is the rate at which the banks lend to the customers, ठीक है। सो अगर इंक्रीज कर देंगे इंटरेस्ट रेट तो लेंडिंग विल बिकम वेरी कॉस्टली। आप जब बैंक पे लोन लेने जाओगे तो लेट्स से आपको पहले 6% कर रहे थे, अब 8% चार्ज करेंगे, ठीक है, बिकॉज द इंटरेस्ट हैज गॉन अप। तो रिसेशन में ये हेल्प नहीं करेगा, रादर पीपल विल नॉट कंज्यूम एनीथिंग, दे विल नॉट बाय। फॉर एग्जांपल आज का जो एक पैटर्न है, पीपल जनरली बाय देयर फोन्स, स्पेसिफिकली आईफोन्स लेट्स से, ठीक है, और लेट्स से एप्पल लैपटॉप्स और कार्स आल्सो, ठीक है, ईएमआई पे लेते हैं। अब ईएमआई में जब रेट इंक्रीज हो जाएगा, पहले वो 6% दे रहे हैं, दैट मींस दे आर बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड दे हैव टू पे लेसर इंटरेस्ट। बट वेयर ऑन द अदर हैंड इफ दे आर बाइंग एनीथिंग एंड दे हैव टू पे अ हायर इंटरेस्ट, तो लोग जनरली टेंड करेंगे यार अभी नहीं लेते, अभी बहुत ज्यादा रेट हाई है, ठीक है। सो दिस इज द टेंडेंसी, सो ये नहीं काम करेगा। सेकंड ऑप्शन इज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, हम देखते हैं, इस पर डिटेल बात करेंगे। इंक्रीज इन द टैक्स रेट अब accompanied by रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब ये भी नहीं है। यहां पे देखो पहला ऑप्शन में इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, दूसरे में योर इंक्रीज इन द टैक्स रेट accompanied by रिडक्शन। अब जीएसटी लेट्स से अगर 5% किसी प्रोडक्ट पे या 10% है, लेट्स से 12% है, किसी में 18 या 28% कर दे गवर्नमेंट, या लेट्स से सारे प्रोडक्ट का 28% कर दे, तो इवेंचुअली जो लोगों के पास पैसा पॉकेट में है, जिसको लेट्स से द मनी इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स विल रिड्यूस, ठीक है। अब अगर वो कंज्यूम रिडक्शन होगा तो पीपल विल नॉट टेंड टू बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई भी चीज खरीदने में उनको लगेगा यार बहुत टैक्स ऑलरेडी पे कर रहे हैं, ठीक है, और टैक्स कितना पे करेंगे तो बेटर सेव सम मनी, तो अगेन वो रिसेशन को और डबल रिसेशन में लेके जाएगी, ठीक है। फोर्थ इज रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोडक्ट्स, पब्लिक प्रोजेक्ट्स। देखो बी एंड डी आर ऑपोजिट, ठीक है। अब रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स हो जाएगा तो क्या मतलब, कोई भी रोड्स नहीं बनेंगे, कोई भी ब्रिजेस नहीं बनेंगे, ठीक है, कोई भी हाईवे नहीं बनेगा, ठीक है। ये पब्लिक प्रोजेक्ट्स जब नहीं बनेंगे तो रिसेशन और आएगी। सो आप देखोगे जब कोविड हुआ था तो गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई दिस पेपर इज फ्रॉम 2021, ये बहुत कॉमन सेंसिकल चीज कर रहा है, बिकॉज चेक कर रहा है, बिकॉज 2020 में बिकॉज ऑफ द कोविड थिंग देयर वाज अ रिसेशन, राइट। सो अब रिसेशन से बाहर कैसे आएंगे? यू हैव टू इन्वेस्ट इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, दैट मीन आंसर इज बी, ठीक है। अगर मैं इन सबको हटा दूं, यू विल बी एबल टू सी दिस मच बेटर, ठीक है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन द पब्लिक प्रोजेक्ट, दिस इज अ वेरी क्लासिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन 2021 बाय यूपीएससी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है एंड मेक श्योर दैट यू अगेन गो थ्रू दिस वीडियो। पब्लिक प्रोजेक्ट जब रोड, रेलवेज, हाईवेज, इनमें जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो इनमें जो काम करते हैं वर्कर्स, उनके पास पैसा आएगा, जब उनके पास पैसा आएगा दे विल बी लाइकली टू स्पेंड इट, ठीक है, वो खर्चा करेंगे, जब वो खर्चा करेंगे तो इकोनॉमी को उससे फायदा होगा, इट गोज इनटू यू नो काइंड ऑफ द व्हील ऑफ द इकोनॉमी गेट्स मूविंग, राइट, और रिसेशन से आने का चांसेस बहुत हाई है। So that is why when you invest, it is called expansionary fiscal policy. What is fiscal policy? Any policy which is taken by the government in order to make sure that the economy is running in a good shape. ठीक है? What is monetary policy? Is the policy that is to be taken by the RBI. ठीक है? तो basic difference यही है. Question number 4. Consider the following statement. Other things remain unchanged. The market demand of a good might increase. ठीक है? The question says might increase if प्राइस ऑफ इट्स सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, ठीक है। प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट मतलब कोई अगर चाय पी रहा है, ठीक है, और कोई कॉफी पी रहा है, लेट्स से कॉफी को मैं सीओ से डिफेंड करता हूं और चाय को मैं टी से बोल देता हूं, ठीक है, लेट्स सी टी एंड कॉफी, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, बाकी सारी चीजें कुछ चेंज नहीं हो रही है। मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड फॉर अ गुड, ठीक है, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, डिमांड है, ठीक है, माइट ध्यान रखना डिमांड है। प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस, अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस इंक्रीज होगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया? सपोज चाय और लेट्स से सिगरेट, सम पीपल डू हैव अ हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग सिगरेट विद टी, राइट, एक जनरल कंपैरिजन बता रहा हूं, या लेट्स से अगेन टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल, चाय और बिस्किट, ठीक है। Let's say somebody is having a biscuit, somebody is having a chai together. That's why they are known as complementary. अगर आप चाय ले रहे हो तो बिस्किट भी ले रहे हो साथ में एज अ स्नैक, आप अगर उसको समझना चाहो तो, ठीक है। These are known as complement goods. तो अगर बिस्किट का इंक्रीज होगा
द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। अगर बिस्किट का डिमांड बढ़ रहा है तो चाय का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा होगा यार ज्यादा तो बढ़ ही रहा है, क्यों लेना है इसको, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस। देखो इंफीरियर गुड क्या हो गया, इंफीरियर गुड कोई भी चीज हो गया, सपोज अगर कोर्स ग्रेन हो गया, ठीक है, आजकल तो हम कहते हैं कोर्स ग्रेन इज अ वेरी गुड थिंग एंड इट हेल्प्स इन गेटिंग अ गुड हेल्थ, ठीक है, आपके हार्ट हेल्थ, आपकी जो डाइजेशन होती है वो बहुत इंक्रीज होती है। बट लेट्स से द कोर्स ग्रेन और द पुअर क्वालिटी ग्रेन, ठीक है, पुअर क्वालिटी कोर्स ग्रेन, और एक हो गया कुछ फाइन ग्रेन, ठीक है। तो जिनके पास ज्यादा पैसा है, लेट्स से दे आर वेल ऑफ, दे ट्राई टू इन्वेस्ट इन फाइन ग्रेन्स, एंड जिनके पास रिलेटिवली लेस पैसे हैं वो पुअर क्वालिटी, इसको इंफीरियर गुड्स कहते हैं, ठीक है, इन सिंपल मीनिंग। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। सो थर्ड इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज जब आपके पास पैसा इंक्रीज होगा यू टेंड टू इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स, ठीक है, गुड क्वालिटी। आपके पास लेट्स से पहले आपके पास कोई रेडमी का फोन था, now if you have like you are earning good and you are a good amount, then you can buy a phone which is lakhs of rupees, let's say some Pro Max of Apple, ठीक है। So third is a wrong statement, third is wrong, so 1 and 4, ठीक है। What is the fourth one? Again we'll see, its price falls, ठीक है, might increase if its price falls, so this is a right statement, the answer is A, ठीक है। Question number 5, with reference to the urban cooperative banks in India, consider the following. They are supervised and regulated by local boards. No, they are not regulated by local boards. They are regulated by RBI. So one is wrong. The moment one is wrong, you have an answer. But still, we'll look into the other question, other options. They can issue equity shares and preference shares. Yes, they can. They were brought under the purview of Banking Regulation Act 1949 through an amendment in 1966. ये थोड़ा पुराना question है. And obviously because जो urban cooperative banks है, there was a scam going on during that time and that's why UPSC has asked this question. So the answer is B, ठीक है। Banking in general is a very important topic and make sure that you see all the aspects related to banking, your monetary policy, your fiscal policy, what is money market, ठीक है, what is your money multiplier, these concepts are very important. इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, अच्छा ठीक है, टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट, यहाँ बॉन्ड्स आ गए हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, अब एग्जांपल आप बताओ, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। अब आपको ऐसे नहीं पता होगा, आपने सुना होगा टी बिल्स के बारे में, टी बिल्स में यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। दे आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ये आते हैं बेसिकली 91, 182 एंड 364 डेज, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, 4 कर लो, ठीक है, उस तरीके से ब्रैकेट्स में आते हैं ये, ठीक है, 91 के मल्टीपल्स में आते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे देखें ना, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अभी बहुत जनरल क्वेश्चन है, सी इवन इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट यू कैन एक्चुअली गेट दिस आंसर राइट। एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल बैंक होता है इससे। अब यहाँ एक्शंस दिया हुआ है, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं दिया, वेरी जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भाई ऑब्वियसली जब आरबीआई कुछ करेगी तो बॉन्ड यील्ड इंपैक्ट होगा ही होगा उससे, ठीक है। इन्फ्लेशन एंड अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, इससे भी होती है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर, वेरी जनरल क्वेश्चन, इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट भी इंपैक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, which of the above can be included in foreign direct investment, FDI, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, यस, इसको कॉमनली बोलते हैं FC, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FI, ठीक है, विद सर्टेन कंडीशंस, ऑब्वियसली इसका कंडीशन एक 10% है, 10% से अगर इन्वेस्ट कोई करता है, ठीक है, तो वो FIS की कैटेगरी में और उसको FDI ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल डेपोजिटरी रिसीट्स, दीज आर G, ये सारी चीज हम पढ़ते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, ठीक है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डेपोजिट्स, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, डेट मतलब एक तरीके से लोन समझ लो, ठीक है। सो फोर्थ इज नॉट देयर, सो इफ 4 इज नॉट देयर, 1 2 3 वी हैव सीन, दैट्स व्हाई आंसर इज A, ठीक है। लेट्स सी द करेक्ट आंसर इज A, ठीक है। NRE नहीं है, डेपोजिट इनकरेक्ट है बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, answer the following statements. Consider the following statement. The effect of devaluation of currency is that it necessarily improves the competitiveness of domestic currency in the foreign market. देखो जब भी devaluation होता है और depreciation, there are two things. One is depreciation versus devaluation, ठीक है। devaluation तब होता है जब कोई भी sovereign country, for example चाइना, अगर yuan की जो value है उसको खुद से गिरा देती है in order to export more, then it is called devaluation.
लेकिन अभी जो कंडीशन है, जो इंडियन रूपी है, इफ 1 rupee टुडे इज इक्वल टू 95, लेट्स से $1 टुडे इज इक्वल टू 95, देन यू हैव अ कंडीशन कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन इज ड्रिवन बाय मार्केट फैक्टर्स। और अभी एक मेजर फैक्टर क्या है? बिकॉज ऑफ द वॉर गोइंग बिटवीन यूएस प्लस इजराइल वर्सेस ईरान। ठीक है, ये जो वॉर चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इंडियन रूपी हैज टेकन अ हिट, एंड दैट्स व्हाई this is called as depreciation. So there is a technical difference between depreciation and devaluation. ठीक है, so यहाँ पे improves the competitiveness of domestic exports in the foreign market. That is a correct statement. Increase in the foreign value of domestic currency. देखो, increase in the foreign value, ये correct है. Improves the trade balance, तो ये wrong है. ठीक है, 3 is wrong. And your improves the competitiveness of domestic exports in the foreign market, increase the foreign value. अब increase the foreign value नहीं, actually it is decrease. ठीक है, so 2 is also wrong. Answer is A. ठीक है, answer is A. Question number 9. Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry for government of India? अगर black economy is also known as parallel economy. ठीक है, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? Diversion of resources to the purchase of real nahi. Investment in unproductive activities and purchase of precious stones nahi. Large donation to political parties and growth of regionalism nahi. देखो, आंसर पढ़ आपको लगेगा बहुत फेक आंसर्स है. लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर. ब्लैक मनी क्या हो गया? ब्लैक मनी का सिंपल डेफिनेशन जो है ब्लैक मनी का, वो ये है दैट यू डू नॉट पे टैक्सेस ऑन वॉट एवर यू अर्न, दैट इज ब्लैक मनी. और अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो ये होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू. अब इसके कारण क्या होगा? यू कैन नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. जो जेन्युइन टैक्स पेयर हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे डायरेक्ट टैक्स जो पे करते हैं, लाइक द पीपल दोज हु आर अर्निंग सैलरीज, दे हैव टू पे मोर, बिकॉज गवर्नमेंट को तो इन अ वे चाहिए होगा, राइट, टू इन्वेस्ट इन द कंट्री, टू इन्वेस्ट फॉर डिफेंस पर्पसेज, टू इन्वेस्ट फॉर ऑल द सर्विसेज दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स. ठीक है, तो जो अगर जेन्युइन लोग नहीं देंगे तो लाइक फिर इकोनॉमी विल बी इन अ बैड शेप. दैट्स व्हाई ब्लैक मनी इज अ हिंड्रेंस. ठीक है, लुकिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी? सबसे ज्यादा महंगाई कौन चीज बढ़ाएगी? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट? नहीं. बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक फाइनेंस टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट? चलो ठीक है, देखते हैं. बोरिंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट. ठीक है, अब इन चारों में से कौन सा आपको लगता है, एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, वी विल नॉट सी द आंसर. चलो ठीक है, बता देता हूं. एक्सप्लेनेशन 2 बार आ गया है. डी इज द राइट आंसर, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी. नाउ हाउ अ न्यू मनी इज क्रिएटेड? गवर्नमेंट बोलेगी आरबीआई को दैट यू हैव टू प्रिंट मनी. ठीक है, यू हैव टू प्रिंट मनी से क्या होगा? आपके पास जो गुड्स हैं वो तो उतने ही रहेंगे, बट आरबीआई जब मनी प्रिंट करेगी तो रुपीज इंक्रीज हो जाएगा. नाउ टू मनी इज टू मच एंड द गुड्स आर फ्यू. ठीक है, तो जो इन्फ्लेशन का एक डेफिनेशन है, टू फ्यू गुड्स चेजिंग टू मच मनी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन. दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, दिस स्लाइड हैज कम ट्वाइस. ओके, दीज आर डिफरेंट थिंग्स. वो ये एक्सप्लेनेशन वाला है. ठीक है, so let's go through it once. Question number 11. The money multiplier in an economy increases with which one of the following? Increase in cash reserve ratio in the banks, increase in statutory liquidity ratio in the banks, increase in the banking habit of the people, increase in the population of the country. ठीक है, सी मनी मल्टीप्लाई एक कॉन्सेप्ट है. अगर आरबीआई 100 रुपीज प्रिंट करती है, तो जब ये बैंक्स को देती है तो बैंक्स कुछ अपने पास रख लेता है, लेट्स से 10 रुपीज, एंड 90 रुपीज दे लेंड. अब जो लेंड किया है उस पे इसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा आरबी बैंक्स को. लेट्स से इट गॉट 91 रुपीज, तो 91 प्लस 10 101 रुपीज. ठीक है, तो दिस इज मनी क्रिएशन इन जनरल. 100 रुपए आरबीआई ने निकाला था, अब इकोनॉमी में 101 रुपए है. दिस इज मनी मल्टीप्लायर. ठीक है, सो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से कोई परेशानी नहीं है. कैश रिजर्व रेशियो, देखो कैश रिजर्व रेशियो बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, तो इससे मनी मल्टीप्लाइंग की इफेक्ट कम होती है. तभी हम बोलते हैं सीआरआर और एसएलआर, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, इन दोनों को कम होना चाहिए. एंड सी इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है, मनी मल्टीप्लायर m इज इक्वल टू 1/r इज द रिजर्व रेशियो. सपोज रिजर्व रेशियो हो गया एसएलआर योर सीआरआर. ठीक है, तो जितना भी r कम होगा मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा. दैट्स व्हाई दिस इज अ सजेशन दैट आरबीआई शुड हैव लेस एसएलआर एंड सीआरआर. With reference to the Indian economy, demand pull inflation can be caused in, or let's say increased by which of the following? एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हमने अभी देखा है. अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट और इन्वेस्ट कर रही है, डिमांड इंक्रीज होगा. सो 1 इज राइट. सो एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं. फिस्कल स्टिमुलस, अगेन द सेम थिंग, तो 2 भी होगा, तो 2 इज कॉमन इन ऑल द 3.
इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, 3 इज नॉट करेक्ट। अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, बट 3 को एक बार एलिमिनेट कर देते हैं। तो आंसर इज ए। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग से क्या होता है, लेट्स से आप कोई एक सैलरी अर्न करते हो, लेट्स से यू अर्न अ सैलरी ऑफ 100 और लेट्स से 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपीज की सैलरी है। नाउ इन्फ्लेशन इंडेक्स करके आपको इसको 1100 बना दिया था आपने, ठीक है, 1000 से 1100 हो गया। नाउ अगर 1100 हो गया तो गुड्स तो उतना ही है, ठीक है। सो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही है, ये कॉस्ट पुश की तरह जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। 1 to 4 इज करेक्ट। और हायर परचेसिंग पावर इज करेक्ट। राइजिंग इंटरेस्ट रेट तो नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट लिंक, ठीक है। योर आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13, with reference to the with reference to India, consider the following statements. Real investors through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in the primary market, ठीक है। The negotiated dealing systems order matching is a government securities trading platform of the RBI, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, CDSL is a joint promoted by RBI of India and Bombay Stock Exchange. This is wrong. 3 is not the right answer. Now 1 and 2 is correct. It is actually promoted by RBI. So B is the right answer. ठीक है, statement 1 is correct, statement 2 is correct, 3 incorrect है। The RBI of India acts as a central bank and regulator. It is not a promoter of CDSL, ठीक है। Question number 14, with reference to water credit, which of the following statements is correct? अब बहुत difficult question है, I mean generally लोग ये पढ़ते नहीं हैं, so even if you have made it wrong or you do not understand this question, you can ignore it, ठीक है। It is a global initiative launched under the aegis of World Health Organization, World Bank, फर्जी point है, so 2 is not correct. Answer is 1 and 3. It puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector, correct. It aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on the subsidies. This is correct. So 1 and 3 is the right statement. Looking to the next question, and I think this is the last question. In India, central bank functions as the lender of last resort. क्या है, ठीक है। RBI से related बहुत सारे questions पूछे गए because obviously in COVID era there were a lot of things that is the government and the RBI were doing together. Lending to trade and industry body when they fail to borrow from other sources, wrong, ठीक है। So 1 is wrong. Providing liquidity to the banks having a temporary crisis, देखते हैं। Lending to the government to finance budgetary deficits, ये भी wrong है, ठीक है। जनरली बजट डेफिसिट को प्रमोट करने के लिए आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट नोन एज, या सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई है, ठीक है। तो ये भी गलत है, सो 2 इज द राइट आंसर, बी, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल एंड मेक श्योर दैट अगेन यू रिवाइज योर थिंग्स फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एक बार आप देखते रहो, ट्राई टू अचीव द मैक्सिमम दैट यू हैव लर्नड एज ऑफ नाउ बाय रिवाइजिंग इट, ठीक है। अब एज द एग्जाम प्रोसेस कमिंग क्लोज, आप अपने करंट अफेयर्स भी बाय 15th ऑफ अप्रैल आप बंद कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू हैव रेड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।